immunity, whatever antibody has been generated for self-antigen. Now these antigens, sorry antibodies, are when they are circulated inside the blood. Sometimes what happens, the effector mechanism of autoimmune disease is 4 different types. First one type is direct cell and tissue damage by autoantibody. Second one is antigen antibody complex. Here what happen, antibody cannot affect directly to the cell or tissue, but what happen, when antibody antigen make complex, now this complex now deposit somewhere here, this complex will affect your cells. Third one is your antibody cannot directly affect the cell or tissue or organs. Instead of that, it will alter, it will modulate the cellular or function. This is third type. Fourth one is cytotoxic type. 4 different type of autoimmune effector mechanism. One is antibody direct effect. Second, direct cannot affect when it bind to the antigen, that complex effect. Third one, no one will affect either antibody or antigen or complex, but the antibody when bind to the particular cells, it will alter the function. Okay. The fourth one is cytotoxic type. So last class we discussed about direct damage by antibody. Here we discussed 3 different diseases. One is autolytic hemolytic anemia, second Goodpasture syndrome, third one is myocarditis, right? All the diseases are important. कोई भी डिसीज सीधा आएगा 4 मार्क 6 मार्क 8 मार्क में, डिसीज भूल के आओगे तो आप डिसीज फिल करोगे एग्जाम में, ठीक है. सो नाउ आई विल स्टार्ट विथ सेल और टिश्यू डैमेज बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. Right. When I am talking about antigen antibody complex, that means if we are discussing about the autoimmunity, it's understandable that is autoantigen, autoantibody. Clear? Now, the example is rheumatoid arthritis. We had already discussed this one in the lab session, and we had also discussed about, we had conducted the experiment. हमने rheumatoid arthritis experiment किया है, हमने rheumatoid arthritis experiment किया है experiment. कल का नहीं था ये. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ब्लड ग्रुपिंग, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्लॉटिंग फैक्टर, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 VDRL, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 RPR, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 VDR, RPR, देन और एक था वाइडल, एक्सपेरिमेंट नंबर 6 डॉट एलाइसा, एक्सपेरिमेंट नंबर 7 रेडियो इम्यूनोएसे, एक्सपेरिमेंट नंबर 8 डबल इम्यूनोडिफ्यूजन या ऑक्टेल लर्निंग मेथड. वी हैड कंप्लीटेड 8 experiments. Okay. So RA next lab probably we will do RA. Rheumatoid arthritis. Okay. Anyway, thing is that in rheumatoid arthritis what happened, it is a chronic inflammatory disease of the flexible joints, synovial joints. It is known as synovial joints. Synovial means the joints are present here where the joints are there. In the joints there are a fluid is there. This fluid is known as synovial fluids. Yes, synovial fluids. Due to that what happen, your movement, bone movement is okay, movement is happening. Now, when the joints or pain takes place due to the deposition of some things, now it is a systemic autoimmune disease. It is not a organ specific. Just like Goodpasture syndrome, that is organ specific. It may be lungs or kidney, or myocarditis for your heart. But here what happened? Total what you call
skeletal system of the person has been affected, that's why it is systemic one. Now, the synovial lymphocytes, why it is happening? It is happening where the synovial is there. The synovial contains some kind of lymphocytes. Now, the lymphocytes, due to some genetic abnormality, the lymphocyte produce abnormal IgG. Did you get? लिम्फोसाइट सिनावेल में जो होता है वो क्या करता है, एक एबनॉर्मल आईजीजी प्रोड्यूस करेंगे. नाउ आईजीजी एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं है. सो ड्यू कोर्स ऑफ दैट आईजीजी इज ट्रीटेड एज ए एंटीजन बिकॉज दैट इज नॉट नॉर्मल. नाउ फॉर दैट अगेंस्ट इम्यूनो सिस्टम विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी दैट इज IgM. इज दैट क्लियर? व्हाट इज मेन रीजन? रीजन इज दैट आपका बॉडी क्या करेगा, एक एबनॉर्मल टाइप ऑफ IgG प्रोडक्शन करेगा. नाउ दिस अगेंस्ट दिस IgG का अगेंस्ट में क्या होगा, आपका बॉडी एक अलग टाइप का एंटीबॉडी बनाएंगे एंड दैट इज IgM टाइप. नाउ ड्यू टू दिस व्हाट हैपन, दिस IgM is called autoantibody. Now this IgM bound to the IgG because the IgM produced for IgG. Now when they bound, now it make a antigen antibody complex. Now this complex will deposit in the synovial joints. Is that clear? Now after deposition what happened, due to deposit the side cells या surrounding cells they may degrade and that's why paining takes place. That is the main reason. Clear? चश्मा रहेगा. Is that clear? क्यों बाइंड करेंगे, कौन बता पाएगा? ये जो IgG एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है. ड्यू टू दिस एबनॉर्मल इट इज ट्रीटेड एज एंटीजन. इसका स्पेसिफिक IgM बनेंगे. क्लियर? नाउ दिस IgM बाउंड टू द IgG and they will deposit in the synovial joints. Now immunocomplex deposit and deposit. So वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होना शुरू होंगे. क्लियर? Now this is also type 3 hypersensitivity. It is also comes under type 3 hypersensitivity reaction. Now what is symptoms? Simple symptoms: joint pain, joint swelling, joint stiffness, loss of joint function, any, because arthritis is the kind of disease. Diagnosis, how can you diagnose? Just simple go for blood test for rheumatoid factor. What is rheumatoid factor? Rheumatoid factor is your IgM. The autoantibody is known as rheumatoid factor. Is that clear? Question sometimes come, what do you mean by rheumatoid factor? Rheumatoid factor is a antibody that is IgM type which has been generated for the abnormal IgG. Clear? समझ में आ रहा है? रूमेटिक मीनिंग का मैं आपको बताता हूँ और थोड़ा टाइम का आएगा. ओके, रूमेटिक फीवर, रूमेटिक आर्थराइटिस सारे क्यों होता है बताता हूँ. क्लियर? सो डायग्नोसिस हम क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे. फॉर व्हाट? टू टेस्ट रूमेटॉइड फैक्टर. मुझे मेरा चश्मा बहुत जल्दी चाहिए. चश्मा चलते आँख खींच रहा है, इससे चलते ये हो रहा है.
उतना पानी में से पॉलीमरेज एंजाइम मुझे चाहिए होता है रिएक्शन में। एक रिएक्शन में उतना पीसीआर ट्यूब में यूज करता हूँ। अब जितना पानी पीता हूँ ना, इतना मेरा पीसीआर रिएक्शन होता है, उतना माइक्रोलिटर का सिस्टम। So blood test for rheumatic factor, all are important. Please, rheumatoid arthritis important है ही। Now there is anti-CCP test. This is also a particular protein, whether that protein is present or not. अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और एमआरआई पर जॉइंट्स, जॉइंट क्या देखने से पता चला कुछ पे डिपॉजिट हुआ है नहीं हुआ है। ट्रीटमेंट, हाँ मतलब जॉइंट में कुछ डिपॉजिट हुआ है पता चलेगा ना, जॉइंट में डिपॉजिट है या नहीं है। नाउ समटाइम नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ओके, जनरली एग्जाम्पल इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एसिटामिनोफेन। आपने देखा होगा एसिटामिनोफेन हमेशा कोई बोन फोन होता है ना, उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जो बोन पेन करता है। ओके, ये नाम याद रखो, एसिटामिनोफेन। कभी हड्डी बड्डी टूट गया ना, पहले सोचना, मतलब दूसरा किसका किसका हुआ है ना, सोचना डॉक्टर इसको लिखेगा ही। क्यों? सिट्रोलिन का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओनली नहीं बढ़ेगा। एक अलग टाइप का प्रोटीन इसके चलो वो बढ़ेगा, वो एक टाइप का प्रोटीन बॉडी में कंट्रोल करके रखता है सारी चीज़ को, वो बढ़ जाएगा। तो जैसे आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP बढ़ जाता है कोई भी इन्फेक्शन में। कब है एग्जाम? इम्यूनोलॉजी का एग्जाम कब है? 15 को ना, 16 को। उस दिन मैं मजा करूंगा। और उस दिन मैं आके पूछूंगा मजा आ रहा है ना, याद रखना। Anyway, so generally what happen, drug work to slow the damage of that RA can cause, but none of the autoimmune disease can be curable. Please be remember on that. Now disease modifying anti-inflammatory drugs are also there. Sometimes biologics means they are the some, क्योंकि हम जो मेडिसिन खाते हैं मेडिसिन पूरा सिस्टम में जाता है, और बायोलॉजिक्स आजकल डेवलप किया गया है जहाँ पे
एग्जैक्टली जरूरत है वहीं जाके पहुंचेगा। ड्रग तो ऐसा नहीं है, टारगेट साइट में ड्रग पहुंचा, जो ड्रग टारगेट साइट में ही जाके इफेक्ट पहुंचता है पहले, उसको बोलते बायोलॉजिक्स। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। समटाइम्स व्हाट हैपन, वी मे include a particular enzyme inhibitor, Janus kinase inhibitor. It is for SCID. आपने देखा होगा Janus kinase इनमें कम होने से SCID होते हैं। SCID is much more important, हाँ। SCID, rheumatoid arthritis, okay, ये डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड स्पेचर सिंड्रोम, ग्रेव्स डिसीज। डिसीज मॉडिफाई रिमेडिड ड्रग्स, ये ड्रग क्या करेगा, डिसीज को क्योंकि डिसीज तो क्यूरेबल नहीं होंगे। कोई भी ऑटोइम्यून डिसीज हम क्यूर नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब दर्द कम होगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसा ही कुछ केस में कर सकते, पर नॉन ऑफ द ऑटोइम्यून डिसीज कैन बी क्यूर। ओके, आपका बस एक ही ऑप्शन था कि सेकेंडरी प्राइमरी तो क्यूर नहीं हो सकता है, जेनेटिक डिफेक्ट है। सेकेंडरी में क्या होता है, जनरली सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी बताओ कैसा होता है, एक्सटर्नल फैक्टर से। एक्सटर्नल फैक्टर को हटा देने से सही हो जाना चाहिए, पर प्रॉब्लम है कि डिसीज एड्स, हटाने से भी कुछ नहीं होने वाला, हटा नहीं पाओगे आप, कैसे हटाओगे। नाउ साइंस आगे ग्रो कर रहा है। आज मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है कुछ मेडिसिन कल निकलेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले एक डायरेक्टर सर काम कर, डायरेक्टर सर का साथ बोलेंगे परचेज कर लो, कल बोलेंगे मत करो, फिर आप क्लेम करेंगे आपने तो कल बोले थे। बोला हाँ अभी बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आज के लिए मेरा स्टेटमेंट है, कल चेंज हो सकता है मेरा स्टेट, बिकॉज आई एम बिलीव इन साइंस, साइंस इज एवर चेंज। ना हाँ हो सकता है, हाँ ना हो सकता है। ओके, एनीवे, सो नेक्स्ट डिसीज इज माइस्थेनिया ग्रेविस, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नाउ बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी टू सेल सरफेस मॉलिक्यूल which alter the functional activity. Generally what is the cause? Myasthenia gravis means आपका मसल सही से काम नहीं करेंगे। क्यों? रीजन इज जनरली व्हाट हैपन, आपका फास्ट पिक्चर में आओ, यहाँ पे क्या होगा, सेकंड में देखो, सॉरी फास्ट में, नर्व है, नर्व सेल से एसिटोचोलाइन सीक्रेट होता है ना, एसिटोचोलाइन का रिसेप्टर होता है मसल सेल में। देयर आर मसल सेल्स, मसल सेल का ऊपर में क्या होता है, देयर इज रिसेप्टर ऑफ एसिटोचोलाइन। नाउ व्हाट एवर द एसिटोचोलाइन secreted from nerve cell, now they will received by the muscle cell through acetylcholine receptor. Clear? तब भी वो फंक्शन करता है। कैसे फंक्शन करेगा पता चला, एसिटोचोलाइन रिलीज कौन करेगा, नर्व सेल, हाँ नर्व सेल, मसल सेल में रिसेप्टर होंगे। ग्रीन कलर सा रिसेप्टर, मसल सेल का ऊपर रिसेप्टर होंगे, नर्व सेल से एसिटोचोलाइन रिलीज होगा, एसिटोचोलाइन कहाँ जाके बाइंड करेगा, मसल सेल में, क्योंकि रिसेप्टर वहीं पे है, तब ये फंक्शन करेगा। पर यहाँ पे क्या होगा, वन काइंड ऑफ एंटीबॉडी हैज बीन जनरेटेड बाय योर सिस्टम एंड दे विल बाइंड टू द रिसेप्टर। कहाँ बाइंड करेंगे, रिसेप्टर में। रिसेप्टर कहाँ है, मसल के ऊपर। सो क्या होगा, एसिटोचोलाइन तो नर्व सेल रिलीज करेगा पर उठेगा नहीं। जैसे आपका फ्रेंड आपको 2 लगा के गए, आप चाहोगे भी 1 नहीं लगा पाओगे, मन कर रहा होगा, रिलीज हो रहा है, लगाओ लगाओ, पर उठेगा नहीं हाथ। सो व्हाट इज द जनरली व्हाट हैपन, इट इज द इन माइस्थेनिया ग्रेविस जनरली it is rare condition, generally what happen 40 to 20 every 1 lakh of people US
यूएस पता नहीं, ये यूएस सबसे ज़्यादा है, उनका जेनेटिक डिफेक्ट है और ऐसा ही है। ओके, सिम्टम्स ट्रबल इन टॉकिंग, क्यों बात करने से क्या टॉकिंग क्यों प्रॉब्लम होगा कीर्ति? मसल काम नहीं करने से टंग का क्या रोल है? बात करने के लिए क्या जरूरत होते है? मैंने पूछ रहा हूं माइस्थेनिया ग्रेविस होने से बात करना क्यों प्रॉब्लम होगा? माइस्थेनिया ग्रेविस होने तो मसल काम नहीं करेगा, हाथ पैर उठेंगे नहीं, पर बात करने की प्रॉब्लम है। सोनाली का क्वेश्चन का आंसर दे हूं क्या? किसको मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया? भक्ति और संदीप रिकॉर्ड लिख रहे हो? मैं पूछ रहा हूं माइस्थेनिया ग्रेविस होने से मसल तो काम नहीं करेंगे सही से, पर इसे बात करने से क्या प्रॉब्लम है? टंग में मसल है ना, टंग में, जीभ में, ऐसे छोड़ो। फाशियल पैरालिसिस हो सकता है, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, मसल वीकनेस, फैटिग, हॉर्स वॉइस या हार्श वॉइस, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, ऐसे ऑटोमेटिक बंद हो जाए, खुलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मसल काम नहीं करेंगे। आपका पता है आप आँख खुल के रखने के लिए कितना एनर्जी आपको ज़रूरत पड़ता है? हाँ, ऐसे सोने से मतलब सोने से कुछ नहीं, बस बंद हो गया। खड़े होने से कुछ नहीं ज़रूरत पड़ता है। आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अपने काम कर रहे हो। खड़ा ना, सोना, देखना, बात करना, उस सारे में बहुत सारे एक्टिविटी जरूरत पड़ता है और मुफ्त में मिल रहे हो सारे चीज, सारे इनक्रेडिबल चीज मुफ्त ही मिलता है। पैसा देख के हम जंक फूड ही परचेज कर सकते, कचरा, अच्छा चीज तो पैसे परचेज नहीं कर सकते हो। आपका बॉडी उसको मुफ्त में ही बनाता है। आप बोलोगे क्यों? हम हाँ ठीक है, कल से मेरा घर में आओ, मैं चाय चीनी दूंगा, बना के मुझे देते रहना, चाय चीनी में दूंगा, चाय बनाते देते रहना। कितना दिन? 2-3 दिन दोगे, 4th डे सर मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आप तो खाना दिया, बना के दिया आपको, मैं सेम चीज़ बोला ना आपको। आप मेरा घर में आओ, मैं चाय चीनी सार दे दूंगा, मुझे हम बनाता कौन है? हाँ, वो फ्री में बनाता है, आप उसके लिए कुछ पैसा नहीं दे रहे हो, और वो जो चाहिए उसको नहीं देते हो। उसको चाहिए रेस्ट, अच्छा सोचना, अच्छा खाना, ठीक है। डिमांड करूंगा चाय बना के दो, आपको मुंह में क्या मारूंगा? फटा हुआ दूध। सेम करता हो ना। एग्जाम है, अच्छे से, पर खाऊंगा जाके क्या? पिज्जा। ऐसा ही एग्जैक्ट ऐसा ही है। मुझे चाय क्या चाहिए? अच्छे से, पर मैं आपको रॉ मटेरियल क्या दे रहा हूँ? खराब दूध। खराब दूध आप दे रहा, आप कैसे चाय बनेगा? अच्छा चाय तो बनेगा नहीं ऑफकोर्स। सेम एग्जाम है 2 दिन के बाद, आज जाके क्या खाएगा? पिज्जा। इधर उधर पेट तो खराब होंगे ही, फिर एटी भी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं होगा। सॉरी, ज़्यादा बाय द वे आपको लग रहा होगा मैं आपको खींच रहा हूँ, नहीं मैं लग नहीं रहा, मैं सच में खींच रहा हूँ। एनीवे, द थिंग इज दैट if your muscle system, anyway, autoimmune disease is, there are some defined symptoms are there, but the thing is that
Not everyone is same function. Not everyone has the same type of symptoms. That is complete depending upon the person to person, individual to individual type of muscle that is affected. हाँ, क्या क्वेश्चन पूछा है? नेहाल मैंने बताओ, मैंने बोला बताओ इसका रीजन, माइस्थेनिया ग्रेविस होने का रीजन क्या है। देखो एक मार्क में सीधा सा आ सकता है कोई भी डिसीज का रीजन। अगर आप इतना इरेस्पॉन्सिवनेस हो क्लास में, एग्जाम्पल बताऊं, किसको पूछूं? अस्मिता को पूछो, बता देगी वो। अस्मिता उसका आंसर करो। खबर पड़ी? अरे पता क्यों पता चला? बताओ। हम बताओ, एग्जाम है। किसका जंक्शन है? जंक्शन कौन सा है? मारवाड़ी हाईवे? એવું ના થાય। मेन से बताओ। हाँ मेन से बता, आप उसको शक्ल क्यों देख रहे हो? वो आप बिना देखे से बता सकती है। मेन से माइस्थेनिया ग्रेविस का रीजन आप लोग सभी के लिए दिस इज लास्ट चांस। समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, माइंड को डाइवर्ट मत करो, कोई किससे बात मत करो। क्लास में 2 या 3 लोग सुन रहे हो, बाकी सारे यहीं बैठ के मेरा शक्ल देख रहे हो या दूसरा किसका शक्ल देख रहे हो? शक्ल देख रहे हो मतलब अटेंड तो मुझे दे रहे हो, और खुद का साथ बेवकूफ कर रहे हो। बेवकूफ होते हैं ना। डेफिनेशन ऑफ बेवकूफ बताओ। डेफिनेशन ऑफ ए बेवकूफ, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ हम देम। कुछ भी कर सकते, कभी भी कर सकते। मैंने आपको बैंक में छोड़ दिया है। बैंक में आपको मैंने बोला है 6 महीना जितना लूटना है लूटो। फिर भी उस टाइम आप लूटने का जगह में खजाना आप क्या कर रहे हो? मोबाइल में कर रहे हो, फ्रेंड से बात कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, चश्मा देख रहे हो, पिज्ज़ा खाने का सोच रहे हो, ये कर रहे हो। अरे वो बाद में भी हो सकता है। आपके पास आधा घंटा ये लूटो जितना लूटना है, जेवरात जो भी डालना है बैग में भरो, निकलो, छाप जाके बाहर करो। ये लोग तो कर पाओगे। अभी जो आप खाना पीना पिज्जा खाने का सोच रहे, माँ बाप ने दिया है, हमेशा नहीं देंगे, वो खत्म हो जाएगा। जस्ट लाइक आपका पास 5,000 बैलेंस है, वो भूल जाते हो। आपका पास 5,000 रुपया ही है, वो 4-5 दिन पिज्जा में खत्म हो जाएगा। पिज्जा खाने के लिए क्यों सोच रहे हो? लूटो ना भाई, खजाना पड़ा है, भरो, लाइफ भर के लिए जितना चाहिए। नहीं, वो आधा घंटा तो हम बात करेंगे, फ्रेंड से बात करेंगे, पिज्जा खाने की सोचेंगे, क्योंकि हमारा पास अभी पैसा है, अभी प्रॉब्लम नहीं है आपको, कि माँ बाप ने कंफर्टेबल लाइफ दिया है। उनको चीटिंग तो कर रहे हो, खुद को कर रहे हो, सभी का टाइम खराब कर रहे हो।
बताओ अवनी, खड़े हो जाओ और यहीं पे आओ, सभी को सुन के बताओ। मेरा तो सुनते ना, आपका सुन लेंगे शायद। बराबर से खबर पड़ी कितनी नहीं पड़ी। खड़े हो, सभी के लिए जो भी खबर सुनो। मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने के लिए ठीक से सुनो, आरती, भक्ति, संदीप सरे को, मसल को कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने के लिए मसल का पास एक सिग्नल जाना चाहिए। सिग्नल कौन देता है? नर्व सेल। आप सो रहे हो, मस्किटो काट रहा है, इसे लगता है आपका, या आप कहीं खड़े हो, कुत्ते आपका पास है, भागते हो, भागने दे, ऐसा कौन करता है? आप आँख बंद कर दूंगा, कुत्ता अगर भाग नहीं पाओगे। मतलब कुत्ता का आप देख रहे हो, ब्रेन को जाता है सिग्नल, नहीं कुत्ता आ रहा है, मुझे लास्ट टाइम काट लिया था, अभी ना ब्रेन क्या बोलेगा? मसल को डायरेक्शन की तरफ भागो, तब भागते हो। ठीक है, इधर आप देख नहीं रहे हो या आपका ब्रेन नहीं काम कर रहा है तो भाग नहीं पाओगे आप। तो बात है कि कोई भी मसल का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने के लिए अपार्ट फ्रॉम हाथ का कंट्रोल नहीं है। आपका हाथ है ना, हाथ लॉन्ग्स कुछ है जिसको कंट्रोल आपका ब्रेन नहीं करता, उसको कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड करता है, जहाँ में रिफ्लेक्स एक्शन आता है। आपका अननोइंगली काम होता है। आपका नोइंगली जो काम करते हो, जान के, समझ के, और आपका बिना परमिशन से जो काम नहीं होता है, वो जो काम करने आपका परमिशन चाहिए, इच्छा चाहिए, वो सारे काम को ब्रेन रेगुलेट करता है। कुछ काम जैसा है, जैसे देखना, सुनना, आँख खोलना, वॉलीबॉल खेलना, मुक्का मारना, बात करना, राइट, मूवी देखना, ये सारे हम मतलब हम चाह के करते हैं। हमने, मुझे तो मूवी नहीं देखना है, आँख बंद कर सकते हैं हम, ये सारा ब्रेन कंट्रोल करता है। पर कुछ चीज़ है, हार्ट बीट, ब्लड फ्लो, राइट, सेल डिवीजन, ये नहीं, मेरा तो अभी हाथ बंद हो जाना चाहिए, नहीं होगा चाह के। या अभी क्या बोलते, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नहीं 70 में आ जाओ, नहीं आएगा, तो आपका कंट्रोल में नहीं है। आपका चाहना वो करता है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। पता है ना, क्लास 10th में पढ़ाया होगा टीचर ने। राइट, देयर इज स्पॉन्टेनियस नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एनर्जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एनीवे, which are जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेन एंड ब्रेन से क्या होता है, मसल को डायरेक्शन कैसे आता है? नर्व सेल थ्रू। नर्व सेल से एक मॉलिक्यूल सीक्रेट होता है, उसका नाम है एसिटोचोलाइन, एसिटोकोलाइन। याद रहा, क्या मॉलिक्यूल का नाम है? कहाँ से सीक्रेशन होता है? नर्व सेल से। ब्रेन से, नर्व सेल से। नर्व सेल का पास में आपका मसल है। नर्व सेल कहाँ है पता है आपको? मगजमा नहीं, उसका सेंटर पॉइंट मगजमा है। मगजमा तो है, हर जगह में आप टच करने से पता चलता है। टच करने से आपको कोई पता चलता है, मस्किटो काटने से पता चलता है, उसका नर्व सेल लेके चलते हैं। तो नर्व सेल थ्रू आउट बॉडी में हर जगह में है, तो मसल सेल भी हर जगह में है। तो नर्व सेल से क्या होगा, एसिटाइलकोलाइन रिलीज होगा, मसल सेल में उसका रिसेप्टर होगा। किसका? एसिटाइलकोलाइन का रिसेप्टर। यहाँ से एसिटाइल रिलीज होगा, मसल सेल में एसिटाइल रिसेप्टर बाइंड करेगा, तभी आपका मसल काम करेगा। तो मसल काम करने के लिए, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने के लिए एसिटाइलकोलाइन चाहिए। एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर में बाइंड होगा तभी जाके काम करेगा। पता चला अभी? तो मसल का फंक्शन करने के लिए
क्या चाहिए? नर्व सेल से एसिडोचोलाइन चाहिए। क्लियर? अब एसिडोचोलाइन कहाँ बाइंड करेगा? कहाँ है रिसेप्टर? अगर समहाउ रिसेप्टर को मैं ब्लॉक कर दूंगा तो भले एसिडोचोलाइन वहाँ पे रिसेप्टर रिसीव होगा, सिक्रेशन होगा, बट क्या होगा? वो वहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा। कैसे ब्लॉक होगा? ब्लॉक होने के लिए एंटीबॉडी यहीं पे है, कुछ एंटीबॉडी यहीं जगह बाइंड कर लेंगे। ड्यू टू दिस काइंड ऑफ एंटीबॉडी दे ब्लॉक द रिसेप्टर्स। हो सकता है, हाँ समझ में आया। अभी कुछ डिफिकल्ट इसमें है। ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वी डोंट नो व्हाट विल बी हैपन, बट इतना हमें पता है मसल काम नहीं करेगा। वी नो अबाउट दैट। क्लियर? नेक्स्ट वन, जनरली देयर इज डायग्नोसिस, न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस। जनरली मेकिंग सेकंड आई मूवमेंट प्रॉपरली, डॉक्टर से चेक करेगा आपका आई मूवमेंट सही हो रहा है नहीं हो रहा है, तो सबसे बड़ा कहते हैं ना टेस्टिंग मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन मतलब सही से काम कर नहीं कर रहे, जैसे कि धीरे आपका कहीं करेगा, ऐसे छुंग लीला बोलेगा, मोटर फंक्शन होता है ना, ऐसे आप जोर जोर से तो कर लोगे, धीरे धीरे करना मुश्किल होगा। हाथ को ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे एक पर्टिकुलर स्टेज में करके देखो 4 बार, आप ऐसे ऐसे 10 बार भी कर लोगे। और ऐसा रखना है, धीरे 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 2 बार करके देखो। वो सारे मोटर फंक्शन का ये है, क्योंकि बहुत उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है। 2 बार में नहीं होगा, मैं करके देख चुका हूँ, मुझे दुखता है। आप कर पाओगे तो अच्छा है, आप 3 बार कर लोगे। पर एनीवे अगर ऐसे आप 3 बार करते हो, ऐसे 30 बार कर सकते हो, वही बोलना चाहता हूँ मैं। अगर आप पुनः नहीं, एनीवे ऑटोइम्यून डिसीज का कोई भी ऑटोइम्यून डिसीज आएगा, सिर्फ ब्लड टेस्ट लिखोगे, उसका एंटीबॉडी टेस्ट में आपको मार्क मिलेंगे, क्योंकि ब्लड में उसका ऑटो एंटीबॉडी होंगे। 1 पॉइंट लिखना है डायग्नोसिस में, ज़्यादा लिखना ही नहीं है। डायग्नोसिस कैसे करोगे आप? ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट इन ब्लड से उसका ऑटो एंटीबॉडी होगा ही होगा, पर हाइपर से लिख दोगे तो क्रॉस कर दूंगा मैं। ऑटो एंटीबॉडी आप इम्यूनोडेफिशिएंसी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। चालू हो रहा है महाभारत, आप एक्सपेक्ट करो अमिताभ बच्चन आएगा अजूबा बन के, तो होगा ही नहीं। ट्रीटमेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स सब देंगे। स्पेशली मैक्सिमम ऑटोइम्यून डिसीज आर टी सेल रेगुलेटर, राइट? टी सेल रेगुलेटर ना, सीधा थाइमस हटा दो, सब थाइमस निकाल दो तो भी चलेंगे। प्लाज्मा फोरेसिस को हम कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मा फोरेसिस? प्लाज्मा फोरेसिस मतलब आपका ब्लड को बाहर में इसका फ्लो किया जाएगा, उसमें से हम डायरेक्ट से क्या कर जाएगा, निकाल लेगा, एंटीबॉडी को निकाल लेगा। हाँ कुछ टाइम तक चल जाएगा आपका। कितना साल जियोगे? मैक्सिमम 80, 90, ठीक है 100, उतना ही है, राइट? क्या फर्क पड़ रहा है? जो लोग भूत हो गए में पता चला, भूत मतलब घोस्ट नहीं है, भूत हो गए मतलब जो थे कभी, इसलिए तो भूत। वर्तमान भूत अतीत होता है ना, इसलिए उनको, मेरा सोच कुछ अलग ही होता है।
हाँ वो भूत होते हैं। तो आप भी कोई भूत हो जाओगे। देखो भूत मतलब भूत वाला भूत नहीं है। हाँ आप भी कभी पास्ट हो जाओगे। तो जिस टाइम पास्ट हो जाएगा वो भी सोचेगा इनका क्या है, ये तो सोशल ही जीते। कौन इंसान को सोच के बोलोगे? कि पता है आपने को नोटिस किया है, चलो थोड़ा बहुत आपको पता होगा, हम श्राद्ध करते राइट। एनीवे दिस ऑल अबाउट माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट टाइम आई हैव कंप्लीटेड ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स डिसीज क्या होता है? जनरली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड में बाइंड करता है, बाइंड करने से थायरॉक्सिन सीक्रेशन बंद होता है। यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी है उसको ब्लॉक कर देगा। ये दोनों कौन सा टाइप का है? ग्रेव्स डिसीज माइस्थेनिया ग्रेविस, दोनों मॉड्यूलेशन फंक्शन, एंटीबॉडी फंक्शन मॉड्यूलेट करता है। एंटीबॉडी सीधा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता है। यहाँ पे क्या था, एंटीबॉडी किससे बाइंड करता है, करने का वो जो फंक्शन को चेंज कर लेता है, जैसे होना था ऐसे नहीं होता है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास, हाँ ऐसे उल्टा है। ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एक ही बाकी रहा टाइप 1 डायबिटीज मेलिटिस, देख लेंगे हम इसको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने पूरा कंप्लीट किए हैं। ओके सो देख लेते हैं। चलो थिंक इज दैट सॉरी